ओके, कहाँ पे थे हम लोग? And the organism. एंड द ऑर्गेनिज्म और नेचुरल ऑब्जेक्ट, and the organism or natural object which is mimicked is called as model. Which is mimicked is called as model. Done? Done? Yes, sir. Okay. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट्स लिख लो, देन वी मूव टू द न्यू टॉपिक। तो इसका मिमिक के कंटिन्यूएशन। बारे में। हाँ हाँ, राइट डाउन। सर किसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं? यही जो टॉपिक हम लोग ने किया। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एन इंडिविजुअल। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एन इंडिविजुअल। डन? सर ये मिमिक्री के बाद लिखना है क्या? नहीं, मिमिक्री हो गया ना, तो दो चार टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिख लो। ओके ओके। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एन इंडिविजुअल। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। डन सर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रिस, अकॉर्डिंग टू, कौन है डी ब्रिस? इवोल्यूशन जिसने थियरी दिया था वो ना। हाँ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रिस, इवोल्यूशन इज अ जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। Evolution is a jerky and discontinuous process. The original jerky and sir. jerky and discontinuous process. Then next, the original idea of survival of fittest was proposed by Herbert Spencer. The original idea of survival of fittest was proposed by Herbert Spencer. Survival of fittest. Herbert Spencer. The original idea of survival of fittest was proposed by Herbert Spencer. चलें आगे? Yes, sir. Okay. So can we move? Okay. Now we have the some topics. ये थोड़ा बहुत है जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। So what is the Proterozoic? नाम सुना है Proterozoic का? वो एरा वाला। हाँ, याद आ रहा है ना, Proterozoic लिखवाया था। हाँ, टेबल में। अजोइक, Yes, sir. प्रोटेरोजोइक सब लिखवाया था ना? ओके। हाँ सर। सो कम्स हियर, ठीक है। सो थोड़ा एरा के बारे में लोग पढ़ेंगे कि कौन सा एरा कैसे था, ठीक है? ओके, जस्ट अ मिनट। डन, चालू करूं? हाँ सर। Okay. So here if you see,
Proterozoic era. So what is the Proterozoic era? It is what, around 2000 million year ago. How much? 2000 million year ago, first cellular form of life seen. Some of the cells had the ability to release oxygen as the light reaction in photosynthesis. Single celled organism to multicellular organisms. ठीक है? So they have the single cell having a ये ability to transform into the organism of multicellular organisms. So please write it down. मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था, उसमें भी ये सब लिखा हुआ है ना? हाँ ये सब है। डन, आगे चलें। 1 second. Done. Okay. Now after that come to the Paleozoic era. Which? Paleozoic era. So in the Paleozoic era, 500 million year ago, intervertebrates. 400 to 600 million year ago, first land organism, that is plant. 400 million year ago, arthropods invades into the lands. 350 million year ago, jawless fish. Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. 320 million year ago, seaweeds and new plants are found. And amphibians to reptiles. ठीक है, 320 million year ago there is an amphibian to reptiles and they lay thick-shelled eggs which do not dry up in sun unlike those of amphibians. In the next 200 million year, reptiles dominated on Earth. Giant ferns, that is अपना pteridophytes were present, but they all failed to form coal deposits slowly. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गए, जमीन के अंदर चले गए, उनका क्या बन गया? कोल। क्या बन गया? कोल। So in 1938 coelacanth fish was caught in South Africa, which was thought to be extinct. So these animals is called as what? Lobefins evolved into the first amphibians. ठीक है, तो जो मिला था उसको क्या बोलते हैं? That is the coelacanth. It is called as lobefins. क्या बोलते हैं? Lobefins. ये जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिया था, याद है चार्ट आप लोगों को? Yes. So it is हाँ सर याद है। so it is nothing but it is the NCERT description of that chart. NCERT में से ऐसे फॉर्म में दिया गया है। हाँ ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में दिया गया है, मतलब टॉपिक पॉइंट्स वाइज किया गया है, तो वहाँ पे बस यही सब बताया हुआ है कि कहाँ पे कब क्या फॉर्म हुआ था। वो तो मैंने चार्ट के टाइम पे आप लोगों को ईयर वाला भी चार्ट दे दिया था एंड हाउ टू बाइफरगेट द चार्ट वो भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है ये सब सर, तो ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना फिर? एनसीईआरटी में क्वेश्चन, इससे अपना नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं ना। अभी जैसे यहाँ पे 500 मिलियन ईयर अगो, 400 मिलियन ईयर अगो, 350 मिलियन ईयर अगो जो लिखा हुआ है ना, अभी ये चार पॉइंट यहाँ पे दे दिया और 4 पॉइंट यहाँ पे दे दिया और बोल दिया मैच द कॉलम, तो क्या करोगे? से लिखना है ना, मतलब? हाँ हाँ हाँ। सर वो 320 मिलियन इयर्स अगो के नीचे जो पॉइंट्स है वो ईयर में ही हुआ है ना? नहीं, वो 320 के ही उसमें आएगा और 320 के बाद क्या आएगा? 200 वाला। तो 320 के बाद ये आएगा, नहीं ये नेक्स्ट 200 रेप्टाइल्स आर डोमिनेटेड ऑन अर्थ।
ठीक है। वो एम्फिबियंस टू रेप्टाइल्स वो 320 में ही हुआ है ना? हाँ, वो सबके सब उसी में है। वन सेकेंड। So the 325 million year old lobe fins, that is what coelacanth, is still very much alive. मतलब सब है अभी भी वो ओशंस में। हाँ, तो मतलब वो उस टाइप के हैं, पर उतने ज्यादा नहीं है जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्या मतलब कि एसिस्टर्स है? हाँ। ओके, कैन यू सी? Yes. Can you see fossils of coelacanth? Yes. यस सर। This is the fossils of coelacanth. Now come to the Mesozoic era. In a Mesozoic era, 200 million years ago, some of the land reptiles went back into the water to evolve into the fish-like reptiles, like what? Ichthyosaurus. The land reptiles were dinosaurs. They included the Tyrannosaurus rex, that is the largest dinosaur, 20 feet in height and huge, fearsome dragon-like teeth. उसके बाद क्या है? That is the Triceratops. Next is what? Pteranodon. Next is what? Stegosaurus, and it is what? Brachiosaurus. So these are what? These are types of dinosaurs. मतलब डायनासोर एक फैमिली है, ये उसके टाइप्स हैं। तो टेरानोडॉन वो डायनासोर है क्या? मतलब जो अपने 12th के एनसीईआरटी के पीछे जो उड़ने वाला डायनासोर का पिक दिया है वो है क्या टेरानोडॉन? वही है। ठीक है सर। हाँ वही है। जैसे डायनासोर सभी, जैसे मंकी है तो मंकी के कितने सारे टाइप्स होते हैं ना, वैसे डायनासोर्स भी जब आए थे तो उनके ढेर सारे इतने हाँ सारे सर। टाइप्स थे। तो जैसे डॉग्स हैं, इतने सारे डॉग्स होते हैं तो उनकी फैमिली डॉग्स है, बाकी के कैनाइन जैसे फैमिली हो गई, तो ढेर सारे डॉग्स जो होंगे उसी में आएंगे। अब सबके अलग अलग नाम है, पूडल, पोमेरियन, ये वो। डन एवरीवन? Dance. वन सेकेंड। ओके।
Next week you have the exam of this chapter now. सर ये चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड कौन कराएगा? ये हिसाब से वो प्रोफेसर ही प्रीतेश सर कराएंगे। कराएंगे, मैंने उनसे कंफर्मेशन कर लिया था। प्रोफेसर कराएंगे। I will teach you 2 chapters, मतलब 3 chapters, एक हेल्थ एंड डिजीज है और दूसरा प्रिंसिपल है और तीसरा एक चैप्टर वो भी है, मतलब कि दोनों जेनेटिक्स से चैप्टर मैं कराऊंगा और हेल्थ एंड डिजीज का बाकी के सब प्रोफेसर कराएंगे, ठीक है? ओके, so here you can see that is the Ichthyosaurus, you know, so it is looks like a dolphin, Gangetic dolphin. देखा है Gangetic dolphin का पिक्चर? तो जाइजेंटिक हाँ। That is what Tyrannosaurus rex. तो डायनासोर की जो स्किन की कलर होती है वो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होती है कि उनका नेचुरल कलर वैसे रहता है? उनका नेचुरल कलर रहता है। That is the Tyrannosaurus rex. Next is what? Triceratops. Next is Pterodon. This is a flying. उसका टाइप का क्या है? This is a flying type. Okay. Next here you can see that is the Stegosaurus. ये देखो ये ऊपर जो है ना वो सब डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, पर हम लोगों को मिला क्या था, हम लोगों को जो नीचे का है दिख रहा है ना आप लोगों को डायग्राम, मतलब फॉसिल्स, सो फॉसिल्स ये सब जो थे अपने को मिले थे, ठीक है, एंड हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया कि दे आर लुक लाइक दैट, ओके, ऐसा किसी ने देखा नहीं था उनको। सर कलर कैसे देते हैं? कलर मतलब ऐसे दिया गया है कलर, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग ने देखा नहीं हुआ है और अपने पास कुछ है ही नहीं, हम लोगों के पास क्या है, बोन का बस स्ट्रक्चर है। उन्होंने पता लगा नहीं सकते इनका ओरिजिनल कलर कौन सा था। हाँ, तो उससे कितने भी एडवांस साइंस हो जाए पता नहीं लगा सकते हम लोग? क्या हुआ? कितने भी एडवांस साइंस हो जाए पता नहीं लगा पाएंगे? कैसे पता लगा पाओगे? कुछ होना तो चाहिए ना, मतलब यू हाँ जस्ट सर, अज्यूम हाँ दैट बोन कि से, ऐसा कुछ हो सकता हाँ है। सर बोन से सिर्फ कार्बन डेटिंग, हाँ। कार्बन डेटिंग से बोन की एज ही मालूम पड़ेगा, कुछ नहीं पता पर चलेगा। बट यू कांट मेक दी व्हाट टाइप्स ना, अभी जैसे अपना ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है, तो अभी जैसे मेल और फीमेल है तो मेल और फीमेल का बोन मिलेगा तो यू कैन क्लासिफाई दैट कि दिस इज अ मेल बोन एंड दिस इज अ फीमेल बोन, ठीक है, पर यू कांट मेक दैट कि मेल और फीमेल कैसे दिखते होंगे, है ना। So that is the Stegosaurus. That is the Brachiosaurus. Now come to the Cenozoic era. Next is what? Cenozoic era. If you see the Cenozoic era, sorry. If you see Cenozoic era, so it is what? 65 million years ago. Dinosaurs suddenly disappeared. First mammal, that is shrew-likes, their fossils are small sized. In South Africa, there were mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to the continental drift, when South America joined with North America, these animals were overridden by the North America fauna. So due to the continental drift, Australian marsupials survived because of lack of competition from the other animals, mammals, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया भी किसका पार्ट था? ऑस्ट्रेलिया भी किसका पार्ट था? साउथ अफ्रीका का पार्ट था ना। हाँ।
हाँ अभी जैसे इंडिया इंडिया जैसे टूट के ऊपर आया, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया टूट के इधर चला गया। तो जो ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स थे, जो मार्सुपियल्स एनिमल्स थे, तो उनका कंटिनेंट क्या हो गया, कंटिनेंट चेंज हो गया। और कंटिनेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से उनको क्या फायदा हुआ, कंपटीशन कम हो गया। और कंपटीशन कम होने की वजह से क्या हुआ, वो बच गए। so what's the meaning of shrew? श्रीव लाइक्स मतलब कि जो उनका टाइप्स होता है, जो श्रीव्स होते हैं, श्रीव लाइक्स उनके टाइप्स होते हैं। तो जैसे अपना ये हो गया एनिमल्स हो गए, जैसे बाकी के जो एनिमल्स हैं ना, तो उनको ये बोलते हैं श्रीव्स। तो इस पे मैं डायग्राम सबको भेजता हूँ। माइस वगैरह की जो फैमिली होती है ना, वो सब इसमें आते हैं, श्रीव लाइक्स। किसकी फैमिली सर? माइस वगैरह, जो चूहा वगैरह रहता है, सब छोटे 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 होते हैं ना, मोल्स। सो दे कम इन व्हाट, दैट इज अ श्रीव लाइक्स। ओके। डन सर। dance Done, sir. Okay, done everyone? यस सर डन। Okay. Now come to the next topic. Okay. So जो मैंने आप लोगों को कराया था, तो if you see, so it is given in a what? In a diagrammatic form. Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian, Triassic, Jurassic, so Cretaceous, Tertiary, Quaternary. ठीक है, तो उसमें क्या क्या मिला था, उसमें आपको ये पूरा लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये डायग्राम समझा यस ना? सर। जैसे जुरैसिक है, उसमें हर्बेशियस ये मिला, फर्न मिला, कॉनिफर मिला, ये मिला। ठीक है, जैसे क्रिटेशियस है, क्रिटेशियस में अपने को क्या मिला, नोसोसिड्स मिला, सिंकॉस मिला, ग्नेटल्स मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने को डाइकॉट्स मिला, फिर मोनोकॉट्स मिला। तो दीज आर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू एनिमल्स।
तो कार्बोनिफेरस यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डायनासोर, ठीक है, तो डायनासोर यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे और टेरापॉड्स जो थे ये सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो दीज आर द जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड जो था वो था क्या था, तो वहाँ पे जो अपना डायनासोर काफी ज्यादा थे। Done. Okay. Now come to the human सर evolution. सर एक मिनट, आप वो ये पीछे वाला स्क्रीन लाएंगे क्या? Okay. Okay. So can you see the development of human? अभी जो लेटेस्ट का ह्यूमन है वो कैसा है? It looks like last one. Yes. Okay. So this हाँ is सर, a एकदम आखिरी में अभी बोन पे है। yeah. So this is called the hominid family. तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम लोग यहाँ तक कैसे कैसे आए हैं, ठीक है? So सबसे पहले जो था, this is the you can see Dryopithecus and उसके बाद Ramipithecus. तो ह्यूमन बीइंग का ये कौन इवोल्यूशन, सा टॉपिक चालू किया आपने? ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन, ओके सर। ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो सबसे पहला देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एप फॉसिल्स। क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज एप, इट इज कॉल्ड एज द एप फॉसिल्स, दिस आर कॉल्ड एज एप फॉसिल्स, ठीक है। एप और ह्यूमन में क्या फर्क था, एनीवन नोस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप एंड ह्यूमंस? लिख लो, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन। सर एप भी क्या था, 2 टाइम से चलते थे। हाँ, तो उन लोग जो थे वो क्या सेमी इरेक्टस पोस्चर में चलते थे, जैसे ये दिख रहा है सर ना। साहब एक ही मेजर डिफरेंस होगा, ब्रेन साइज। हाँ, तो आप लोग लिखो ना, मैं लिखवा रहा हूँ ना। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। पहले एप्स लिखो फिर ह्यूमन लिखो, बोलो। Yes. Sir. ओके, सो स्टार्ट। एप्स सेमी इरेक्ट पोस्चर, एप्स में पहला पॉइंट लिखो सेमी इरेक्ट पोस्चर। ह्यूमन में पहला पॉइंट लिखो कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर विथ बाइपेडल लोकोमोशन। से ह्यूमन का पॉइंट रिपीट। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर विथ बाइपेडल लोकोमोशन। बाय बाइपेडल, 2 पैर पे चलने वाला। नेक्स्ट, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन होल बॉडी। एप्स में क्या लिखो, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन होल बॉडी। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन होल बॉडी। ह्यूमन में लिखो थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ओनली ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी, ओनली ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, एप में लिखो लेस क्रेनियल कैपेसिटी, लेस cranial capacity, that is 450 cc, and less intelligent. Human में लेस लिखो क्रेनियल। less cranial capacity, that is 450 cc, and less intelligent. Human में थर्ड क्या है, more cranial capacity and more intelligent, that is 1300 to 1600 cc.
कैपेसिटी कितना बोला आपने? 1300 to 1600 cc in human. नेक्स्ट एप्स में लिखो 4 limbs longer than hind limbs. हाइंड मतलब पीछे वाला limbs. 4 limbs is longer than hind limbs. ह्यूमन में लिखो 4 limbs shorter than hind limbs. Done. नेक्स्ट यू शेप्ड जॉ. एप्स में लिखो यू शेप्ड जॉ एंड chin absent. यू शेप्ड जॉ एंड chin absent. And chin absent. यस. ह्यूमन में लिखो सेमी सर्कुलर जॉ एंड chin present. Semicircular jaw and chin present. Next, 6 में लिखो thumb is parallel to palm. Thumb is parallel to palm. Okay. Hello. Yes. Thumb is parallel to palm. और ह्यूमन में लिखो thumb is opposite to palm. अगर आप लोग अपना palm देखोगे तो your sorry palm बोल रहा हूँ thumb. If you see your thumb, so you know your thumb is freely movable. Yes. Your thumb is freely movable. ठीक है. तो पहले नहीं था. हाँ, तो पहले जब हम लोग मंकी थे तो उस समय नहीं था. और आज भी अगर आप लोग मंकी देखोगे तो मंकी का जो थंब होता है इट इज नॉट फ्रीली मूवेबल. इसलिए उनका अपना ग्रास कुछ ये पकड़ने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. अब सर जॉइंट रहेगा तो पकड़ने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी और अगर फ्रीली मूवेबल कम रहेगी फिर. हाँ हाँ, इसलिए मंकी लोग देखो ना कितने इसलिए ये लटकते हैं, ये करते हैं. हाँ सर, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे कूद जाते हैं आराम से. हाँ. Done. Done everyone? Okay. Sir, 1 second. अरे ये अभी नहीं लिखना है, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट इज इफ यू सी दीज आर कॉल्ड एज द एप फॉसिल्स. In this you will study about the Dryopithecus and Ramipithecus. So this is around 15 million years ago. So they have hairy and mouse-like gorillas and chimpanzees. Dryopithecus are more ape-like. Dryopithecus are more ape-like, and Ramipithecus is more मैन-लाइक. ठीक है, तो Ramipithecus का ह्यूमन जैसा लग रहा है मोर, एंड ये कैसे दिख रहे हैं, दे आर मोर एप-लाइक. न्यू फॉसिल्स ऑफ मैन-लाइक बोन्स